incident said the local panchayats will conduct a fire safety audit of all the nightclubs to ensure such an incident does not recur. The licenses of clubs not having the necessary permissions will be cancelled, he said. First time in I feel in Goa state for after I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many 23 casualties are there. And that 3 women are there. And 20 male, middle any age. tourist or the local? Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. Viewers, just to give you details of what was happening at the nightclub, according to its Instagram page, Birds by Romeo Lane was hosting a Bollywood banger night and DJ Nicky was invited. Prime Minister Narendra Modi, meanwhile, condoled the victims of the club fire and assured full state support after speaking to the Chief Minister, who apprised the Prime Minister of the current situation on the ground. An ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of each of the kin of the deceased. Now, we have some big breaking news coming in, viewers. Case has been registered and one of the nightclub's operators has now been arrested. This is a big development. Crackdown has begun. Heads have started to roll. 3 people have been booked for culpable homicide. And one of those 3 individuals and accused is the operator. The operators have been arrested. And this is the latest breaking news that we're tracking at the moment. Because this was no accident, viewers. Let's not make a mistake by calling it an accident. This was a fire that was engineered by negligence, because every single warning sign was there, but it was ignored by the nightclub top brass. Every single rule book also existed but violated. We have Jaiprakash joining us live on this broadcast. Jaiprakash, 3 लोगों के खिलाफ अभी केस रजिस्टर हुआ है, एक को अरेस्ट किया है. क्या हो रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है पूरे स्पीड में चालू है. अभी मैं आपको बताऊं कि जो अरपुरा का ये जो नाइट क्लब है, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले में बनाई जा रही है. 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. एक जो मैनेजर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि ये जो गोवा का नाइट क्लब है अरपुरा का, इसमें जो अब तक मृतकों का आंकड़ा है वो 25 तक पहुंच गया है. 7 लोग अभी भी इस मामले में जो है इंजर्ड हैं, जो जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो जले हुए हैं, जिसे गोवा के जीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कुछ शव ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से जले हैं, जिनका डीएनए टेस्ट करवा कर ही उनकी पहचान करवाई जा सकती है. इसमें विदेशी पर्यटक भी थे, क्योंकि कल रात को एक डीजे निकी का उसमें कार्यक्रम रखा गया था बॉलीवुड नाइट के नाम से. तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सैलानी आए थे, इंडियन और फॉरेनर. तो जो एग्जिट और एंट्री गेट है वो एक ही होने की वजह से बहुत सारे जो सैलानी हैं, जब ये आग लगी तो लोकल स्टाफ जो था, करीब 20 से 25 का स्टाफ था, जिसमें बार टेंडर होते हैं, वेटर होते हैं, मैनेजर होते हैं, स्वीपर होते हैं, सिक्योरिटी होती है, वो सब जो है वो उसमें स्टक हो गए. और बाहर निकलने का जो रास्ता था वो नहीं मिल पाने की वजह से जो धुआं होता है, सफोकेशन होता है, उसकी वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. ऐसा खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने बयान में कहा रात को. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डीजीपी आलोक कुमार है, उन्होंने भी इस मामले में स्पेशल आईजी की एक टीम बनाई है. और ये जो मामला है, इसमें कहां नेग्लिजेंस बरता गया, कहां पर इसमें लापरवाही बरती गई, उस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है. जयप्रकाश जी, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा है. देयर आर नो इमरजेंसी एग्जिट्स, देयर आर नो एंट्री पॉइंट्स, एंड एंट्री पॉइंट्स आर आल्सो नैरो, वेरी वेरी नैरो. And in this case, we saw how the fire tenders found it very, very difficult to reach the incident of fire, and that probably hampered the rescue and relief operations. So, जयप्रकाश जी, ये बताइए अभी क्लब्स के खिलाफ क्या एक्शन ले जाएगा?
बिल्कुल, देखिए क्लब में जो नॉर्म्स हैं उसका वायलेशन किया गया है, ये बात साफ है। नॉर्म्स का वायलेशन 3 जगह पर दिखाई भी दे रहा है। जो स्टेज है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था और वहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। दूसरी बात, जो स्टाफ था उसको फायर फाइटिंग की जो फायर फाइटिंग कैसे की जाती है, आग लगने के बाद कैसे उसे बुझाया जाता है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। तीसरी बात, एंट्री और एग्जिट गेट जो था वो जो है वो वहां पर जो एक ही होने की वजह से बाहर निकलने के लिए भगदड़ जब मची होगी, जब तो स्टैम्पेड होने की वजह से कई लोग गिरे होंगे और धुएं की वजह से उनकी मौत हुई होगी, ये अभी प्राइमा फेसी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अमित पाटकर जो गोवा के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति को गोवा की सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए, गोवा की सरकार भंग करनी चाहिए। उनका कहना है कि पणजी में भी एक चलती हुई जो बोट है उसमें आग लग गई थी। इसी तरह से इसके पहले भी कई रेस्टोरेंट हैं, उनके अंदर पब्स और क्लब्स हैं, उनके अंदर जो है ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कर्लीज क्लब को मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कर्लीज क्लब में 2022 में जो फोगाट हैं उनकी मौत हुई थी, ड्रग्स का सेवन करने की वजह से मौत हुई थी, लेकिन अतिरिक्त ड्रग का डोज जो है वो फोगाट ने लिया था, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था गोवा पुलिस के द्वारा, और उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो ये ड्रग्स कहाँ से आता है इन क्लबों में? दिसंबर का महीना है तो आप समझ सकते हैं, क्रिसमस और 31st जो गोवा में सेलिब्रेट होता है ये पूरे इंडिया में नहीं होता, तो इसकी वजह से क्लब्स और पब्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते और ऐसी घटनाएं होती हैं। जयप्रकाश जी, वो फोगाट के केस में कर्लीज को डेमोलिश भी किया गया था, इस क्लब के साथ अभी क्या होगा? आप एकदम सही कह रहे हैं, यू आर वेरी राइट कि कर्लीज को जो है वो डेमोलिश किया गया था और कर्लीज भी नॉर्थ गोवा में ही था और ये जो क्लब है ये भी नॉर्थ गोवा में ही है और इसकी वजह से मुख्यमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश दिया है। जो भी इलीगल पार्ट है इस क्लब का उसको तोड़ा जाएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इसका इवेल्युएशन किया जा रहा है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लोकल बॉडी जो सिविक अथॉरिटी है उसकी टीम वहां पर पहुंची हुई है। कहां कहां पर एनक्रोचमेंट किया गया था, किस किस चीज का परमिशन नहीं लिया गया था, इन तमाम चीजों का इवेल्युएशन किया जा रहा है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस पूरे मामले में बनाई जाएगी जो इस पूरे केस का जो है वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटी घटना नहीं है। जिस तरह से 25 लोग क्लब के अंदर आग लगने के बाद मर जाते हैं, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि अगर आग लगी उस वक्त अचानक तो आग लगी नहीं होगी, कोई केमिकल होगा, कोई पेट्रोलियम पदार्थ होगा या कोई सिलेंडर ब्लास्ट होगा, तब भी लोगों को भागने का मौका होना चाहिए था। तो क्यों नहीं लोग वहां से भाग पाए? क्या ऐसा कारण था कि लोग जो वहां पर स्टक हो गए? इन तमाम चीजों की जो जांच पड़ताल है वो फिलहाल की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची है, गोवा पुलिस की टीम पहुंची है, गोवा के आईजी वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो फॉरेंसिक की टीम है वो वहां पहुंची है, क्योंकि मौत का मामला है तो फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचना जायज है और फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। तमाम एविडेंसेस जो है वो वहां से लिए जा रहे हैं कि जब ये आग लगी उसके बाद क्राइम सीन क्या था। क्राइम सीन वहां पर समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताऊं, और इसी वजह से वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा कि आग आखिर लगी तो कैसे लगी। और जयप्रकाश जी, ये जो क्लब में जो हादसा हुआ है, ये क्लब बहुत सालों से चल रहा है और ये सेफ्टी वायलेशंस दैट हैव बीन रिपोर्टेड, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स टुगेदर एंड द सिस्टम इज आल्सो टू बी ब्लेम्ड। जयप्रकाश जी, या यू वेरी राइट। इस पूरे मामले में ये एक पहली घटना नहीं है। पणजिम की घटना अमित पाटकर ने बताई, कर्लीज की घटना हम अभी जिक्र कर रहे हैं। खुद गोवा के मुख्यमंत्री आधी रात को वहां पर पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी वहां पहुंचते, तो आप समझ सकते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। ये कोई छोटी घटना इसलिए भी नहीं है क्योंकि दिसंबर का महीना है, ये टूरिस्ट वहां पर बड़ी संख्या में जाते हैं। पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट हैं वो गोवा में इस वक्त जाते हैं और अगर ऐसी घटना होगी तो गोवा का जो टूरिज्म है वो भी प्रभावित होगा। दैट्स राइट। और 25 लोग मर चुके हैं इस इंसिडेंट में। नो अमाउंट ऑफ एक्शन अगेंस्ट 3 इंडिविजुअल्स और मोर इंडिविजुअल्स कैन ब्रिंग देम बैक। जयप्रकाश जी, बिल्कुल अभी शुरुआती जांच है। मैं आपको बताऊं, ये जो ये जो क्लब है इसकी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती जांच चल रही है। पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो इंजर्ड हैं उनको कैसे बचाया जाए। जो 7 लोग इंजर्ड हैं उनको किसी भी हाल में बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देकर बचाया जाए। दूसरी प्रायोरिटी इसमें ये है कि
जो लोग वहां पर आई विटनेसेस हैं उनके बयान लिए जाएं, जो वहां पर आंखों देखी, जिन्होंने चश्मदीद जिसको हम कहते हैं, जो वहां पर थे, उनको उनका स्टेटमेंट लिया जाए। तो 7 लोगों का स्टेटमेंट लिया गया है, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, 2 के खिलाफ जो है वारंट निकाला गया है, ऐसी खबर आ रही है। और जो पुलिस है, गोवा पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, सिविक अथॉरिटी और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है। और जयप्रकाश जी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो है, ये 3 महीने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर कोने से, दुनिया के हर कोने से आते हैं इधर। और अभी न्यू ईयर का भी ये सीजन है, तो डू यू थिंक दैट क्लब्स शुड नाउ बी चेक्ड, दे शुड ऑल बी पुल्ड अप एंड एवरी सेफ्टी norm should be put in place to ensure that such a tragedy does not happen in the coming days? वेरी वेरी ट्रू। नॉर्थ गोवा का अरपोरा का ये जो पूरा मामला हुआ है, मैं आपको बताऊं, अब जितने भी क्लब है नॉर्थ गोवा में, सबसे ज्यादा क्लब है, साउथ गोवा में भी क्लब है, साउथ गोवा के मडगांव में और जो कानाकोना और जो अलग अलग इलाके हैं वहां पे क्लब्स है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर क्लब की बात करें तो वो पणजिम में है, और पणजिम के आसपास के जितने भी समुद्री इलाके हैं, जो बीचेस हैं, वहां पर क्लब बनाए गए हैं। बहुत ही अंदर इंटीरियर गांव में क्लब बनाए गए। जैसे कर्लीज क्लब जो है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेन रोड से तकरीबन 15 मिनट का वॉक करना पड़ता है। तो ये सारे क्लब जो है वो जहां पर इलीगल तरीके से इसको इंक्रोच किया गया होगा, उसको तोड़ने का और उसके खिलाफ एक्शन का जो काम है वो अब गोवा पुलिस और गोवा सरकार जरूर करेगी, क्योंकि गोवा बहुत बड़ा राज्य नहीं है। उसमें जो है इस तरीके की कार्रवाई करना बहुत आसान है। और जिस तरीके से दिसंबर का महीना है, क्रिसमस का महीना है, नया साल है, तो गोवा में सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट आते हैं तो इसी महीने में आते हैं। That's right, Jayaprakash ji. And for our viewers who are tuning into News 9 right now, Jayaprakash ji, if you could give a timeline कि कब कैसे हुआ और कितने लोग फंस गए थे ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि reports are suggesting that the fire was in the first floor and also in the kitchen, but the people who were there in that particular club, they were trapped in the ground floor. If you could give a timeline कि कब क्या हुआ? देखिए, जो घटना है वो आधी रात के आसपास हुई है। बताया जा रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच ये इस आग की खबर आई, यानी कि उस वक्त ये आग लगी जिस वक्त ये जो प्रोग्राम है वो चालू था। जैसे मैंने आपको बताया, डीजे निकी का प्रोग्राम था। डीजे निकी बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा पॉपुलर है गोवा के अंदर। उनके जहां भी प्रोग्राम होते हैं बड़ी संख्या में उसमें जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। टिकट भी बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। तो डीजे निकी का ये जो इवेंट था वो 9 बजे शुरू हुआ और 1:30 बजे के आसपास जो है इस आग की खबर आई, और उसके बाद ये जो पूरा जो क्योज है वो शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं कि 25 लोग एक साथ तो नहीं मरे होंगे। 25 लोगों को जो है भागते हुए, दम घुटने से, धुआं जाने से, उनको सफोकेशन से उनकी मौत हुई होगी। 4 लोग जो है इसमें बताया जा रहा है जल के मरे हैं। तो जो जल के मरे हैं, जहां पर ब्लास्ट हुआ होगा, सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर केमिकल ब्लास्ट है या कोई ऐसा केमिकल था जो उस इवेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ है, ये कुछ अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो जानकारी है उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन की, उसमें अब तक जो है 7 लोगों का इसमें बयान लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कॉन्स्पिरेंसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी विद द लार्जर इंटेंशन, और इसके अलावा जो फायर नॉर्म्स और जो सिविक अथॉरिटी के नॉर्म्स होते हैं उसका इंक्रोचमेंट करने का, यानी लापरवाही का मामला जो है इस वक्त फिलहाल उस एंगल पर जांच चल रही है।